Hello children, welcome back to our Hindi class. Today I am here with an interesting topic. Today we are going to learn 10th chapter, that is Rakhi ka Mulya, value of Rakhi. Rakhi is not just a thread, it ties us with love. In this story we have 8 characters, that is Rani Karnavati, Bagh Singh, Jawahari Bai, Humayun and Tatar Khan, Hindu Beg, Sipahi, Doot. Doot is messenger. In this story, we will learn the importance of Rakhi and relationship between brother and sister. Dear students, open your textbook page number 78. This is our chapter Rakhi ka Mulya. Here we have few questions. भाई बहनों से जुड़े कौन कौन से त्योहार हैं? What are the festivals that are related to the relationship of a brother and a sister? विभिन्न त्योहार क्या सीख देते हैं? What kind of moral values do we get from different festivals? हुमायूं कौन था? Who was हुमायूं? इस एकांकी में रानी कर्णावती द्वारा हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगने की कथा का वर्णन है। राखी मिलने पर हुमायूं शत्रुता भुलाकर चित्तौड़ की रक्षा के लिए सेनाएं भेजकर राखी का मान रखते हैं। In this chapter, we will learn about the incident when Rani Karnavati of Chittod sent Rakhi to the Emperor Humayun and asked him for help. On receiving this Rakhi, Humayun let go of the enmity and sent his army to protect Chittod. There are all total 8 characters in this story that we have discussed. पहला दृश्य, फर्स्ट सीन, स्थान चित्तौड़ का भीतरी भाग, इनसाइड चित्तौड़ फोर्ट। पहला दृश्य, फर्स्ट सीन, स्थान चित्तौड़ का भीतरी भाग, इनसाइड चित्तौड़ फोर्ट। महारानी कर्णावती, जवाहरी बाई और बाघ सिंह बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। In the first scene, you can see that Maharani Karnavati, Jawahari Bhai and Bagh Singh as sitting and talking to each other. Karnavati: हाँ बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है? Karnavati asked, Okay Bagh Singh, what is the news about the war? Bagh Singh: राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का तोपखाना आग उगल रहा है, उसका मुकाबला तलवारों से तो हो नहीं सकता, हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मारकर, पर दुख है तो यही कि मरकर भी मेवाड़ के मान की रक्षा ना कर पाएंगे। Bagh Singh says, the Rajputs are fighting with great valor, but first of all, our number is too less as compared to the enemy. Secondly, the enemy's artillery is on fire. We cannot fight against it with our swords. Definitely, we will happily sacrifice our life for Mewad, but feel sorry to say that we cannot protect the dignity and pride of Mewad. कर्णावती: बड़ा कठिन प्रसंग है, इस समय मेरे स्वामी नहीं हैं, नहीं तो उनके रहते
मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसमें साहस था। उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का साहस किसे हो सकता था। बाघ सिंह जी, हमने आपस की शत्रुता की आग में अपने ही हाथों अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया। कर्णावती said, "The construct is too difficult. Right now my husband isn't here, or else no one would have dared to even look towards Mewar. From his terror, the oppressives would get scared and would not dare to enter Mewar. Bagh Singh ji, we lost everything by fighting among ourselves." बाघ सिंह, अब पश्चाताप करने से क्या लाभ है देवी। अब तो हमें मार्ग बताइए। भगत सिंह आस्क्ड, "There is no point regretting right now. Kindly show us the path." पहला दृश्य, फर्स्ट सीन। स्थान चित्तौड़ का भीतरी भाग, इनसाइड चित्तौड़ फोर्ट। महारानी कर्णावती, जवाहरी बाई और बाघ सिंह बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। इन द फर्स्ट सीन यू कैन सी दैट महारानी कर्णावती, जवाहरी बाई एंड बाघ सिंह as sitting and talking to each other. कर्णावती, हाँ बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है। कर्णावती आस्क्ड, "Okay बाघ सिंह, what is the news about the war?" बाघ सिंह, राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का तोपखाना आग उगल रहा है। उसका मुकाबला तलवारों से तो हो नहीं सकता। हमें मरना है। हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मारकर, पर दुख है तो यही कि मरकर भी मेवाड़ के मान की रक्षा ना कर पाएंगे। Bagh Singh says, "The Rajputs are fighting with great valor. First of all, our number is too less as compared to the enemy. Secondly, the enemy's artillery is on fire. We cannot fight against it with our swords. Definitely, we will happily sacrifice our life for Mewar, but feel sorry to say that we cannot protect the dignity and pride of Mewar." कर्णावती, बड़ा कठिन प्रसंग है। इस समय मेरे स्वामी नहीं हैं, नहीं तो उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसमें साहस था। उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का साहस किसे हो सकता था। बाघ सिंह जी, हमने आपस की शत्रुता की आग में अपने ही हाथों अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया। Karnavati said, "The construct is too difficult. Right now my husband isn't here, or else no one would have dared to even look towards Mewar. From his terror, the oppressives would get scared and would not dare to enter Mewar. Bagh Singh ji, we lost everything by fighting among ourselves." बाघ सिंह,
अब पश्चाताप करने से क्या लाभ है देवी? अब तो हमें मार्ग बताइए। भगत सिंह asked, "There is no point regretting right now. Kindly show us the path." महारानी कर्णावती, जवाहरी बाई और बाघ सिंह बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। इन द फर्स्ट सीन यू कैन सी दैट महारानी कर्णावती, जवाहरी भाई एंड बाघ सिंह as sitting and talking to each other. कर्णावती, हाँ बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है? कर्णावती asked, "Okay बाघ सिंह, what is the news about the war?" बाघ सिंह, राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का तोपखाना आग उगल रहा है। उसका मुकाबला तलवारों से तो हो नहीं सकता। हमें मरना है। हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मारकर, पर दुख है तो यही कि मरकर भी मेवाड़ के मान की रक्षा ना कर पाएंगे। बाघ सिंह says, "The Rajputs are fighting with great valor, but first of all, our number is too less as compared to the enemy. Secondly, the enemy's artillery is on fire. We cannot fight against it with our swords. Definitely, we will happily sacrifice our life for Mewar, but feel sorry to say that we cannot protect the dignity and pride of Mewar." कर्णावती, बड़ा कठिन प्रसंग है। इस समय मेरे स्वामी नहीं हैं, नहीं तो उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसमें साहस था। उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का साहस किसे हो सकता था? बाघ सिंह जी, हमने आपस की शत्रुता की आग में अपने ही हाथों अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया। कर्णावती said, "The conflict is too difficult. Right now my husband isn't here, or else no one would have dared to even look towards Mewar. From his terror, the oppressives would get scared and would not dare to enter Mewar. Bagh Singh ji, we lost everything by fighting among ourselves." बाघ सिंह, अब पश्चाताप करने से क्या लाभ है देवी? अब तो हमें मार्ग बताइए। भगत सिंह asked, "There is no point regretting right now. Kindly show us the path." कर्णावती, मुझे एक उपाय सूझा है। कर्णावती says, "I have found out a way." बाघ सिंह, क्या? बाघ सिंह asked, "What?" कर्णावती, मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। कर्णावती said, "I will send Rakhi to the king हुमायूं." जवाहरी बाई, हुमायूं को? क्या एक मुसलमान को भाई बनाओगी? जवाहरी बाई says, "What? Will you send Rakhi to Humayun? How can you make a Muslim your brother?" कर्णावती, चौकती क्यों हो जवाहरी? मुसलमान भी इंसान हैं।
उनकी भी बहनें होती हैं। सोचो तो बहन, क्या वे मनुष्य नहीं हैं? क्या उनके हृदय नहीं हैं? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं। मंदिर में ना जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इसीलिए हमें उनसे घृणा करनी चाहिए? कर्णावती आस्क्ड, "Why are you surprised, Jawahari? Even Muslims are human beings. They too have sisters. Don't you think they have hearts? Just because they call Ishwar as Khuda and go to masjid instead of mandir, do we have to hate them for this?" बाघ सिंह, यह इतना आसान नहीं। क्या हुमायूं पुराना वैर भूल सकेंगे? सीकरी के युद्ध के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिटा सकेंगे? बाघ सिंह आस्क्ड, "It is not so easy. Will Humayun be able to forget the old enmity? Can the wounds of Sikri war heal so soon?" कर्णावती, हमारी राखी वह शीतल दवा है जो सारे घाव भर देगी। यह वह वरदान है जो सारे वैर भावों को जलाकर भस्म कर देती है। राखी पाने के बाद कोई वैर विरोध याद रख सकता है भला? कर्णावती, "My Rakhi will heal all the wounds. It is a blessing which will incinerate all enmity." जवाहरी बाई, "पर वे हमारे शत्रु हैं." जवाहरी बाई said, "But they are our enemies." जवाहरी बाई, अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि कौन कितना पानी में है। इसी बहाने उनकी मनुष्यता की परीक्षा हो जाएगी और यह भी प्रकट हो जाएगा कि एक राजपुतानी की राखी में कितनी ताकत है। जवाहरी बाई says, "It's a good way to challenge their capability. In this way, we can test their humanity and will also come to know the value of Rakhi." दूसरा दृश्य, सीन 2। बिहार में गंगा तट पर हुमायूं का फौजी ढेरा। अपने खास तंबू में हुमायूं, उसका सेनापति हिंदू बेग और तातर खां बैठे हैं। एक पहरेदार का प्रवेश। Humayun's army is set up on the banks of river Ganga. Humayun is sitting with the commander-in-chief Hindu Beg and Tatar Khan. A god enters. पहरेदार अभिवादन करके, जहांपना। Now the god says, "My lord." हुमायूं, क्या है? हुमायूं asked, "What happened?" पहरेदार, मेवाड़ से एक दूत आया है। God says, "There is a messenger from मेवाड़." हुमायूं, मेवाड़ से? अच्छा, यही भेज दो। हुमायूं says, "From मेवाड़? Okay, send him here." पहरेदार के साथ दूत आता है। The god brings the messenger. हुमायूं, आओ मेवाड़ के बहादुर। हुमायूं says, "Come in, the brave of मेवाड़." दूत अभिवादन करके, स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह जी की महारानी कर्णावती ने
आपको यह भेंट भेजी है। मैसेंजर सेज द वाइफ ऑफ लेट महाराणा संग्राम सिंह, महारानी कर्णावती, हैज सेंट यू दिस गिफ्ट। हुमायूं हाथ बढ़ाकर, मेरी किस्मत हिंदू बेग, तुम जानते हो मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ और हर एक बहादुर आदमी को करनी चाहिए। वहाँ की मिट्टी भी माथे पर लगाने की चीज़ है। हुमायूं सेज माई फेट हिंदू बेग, डू यू नो आई रिस्पेक्ट मेवाड़ and its men a lot. The soil of that land is worth putting it on our forehead. तातर खान, दुश्मन की तारीफ करने में जहाँपना से बढ़कर। तातर खान says, no one prizes their enemy like you, my lord. हुमायूं, दुश्मन, हा हा हा। आंखों पर से वहम का चश्मा हटाकर देखिए। जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं वे सब हमारे भाई हैं। हम एक ही खुदा के बंदे हैं। तातर, हाँ देखूं तो इसमें क्या लिखा है। हुमायूं से, एनिमी? They are actually our brothers. They are also people of God. Let me see what is there inside the letter. हुमायूं पत्र पढ़ते हुए विचारमग्न हो जाते हैं। हुमायूं thoughtfully reads the letter. हिंदू बेग, क्या सपना देखने लगे जहाँपना? महारानी कर्णावती ने क्या जादू का पिटरा भेजा है? हिंदू बेग asked, Are you dreaming, my lord? Has Maharani Karnavati sent you something magical? हुमायूं, सचमुच हिंदू बेग, उन्होंने जादू का पिटारा ही भेजा है। मेरे सूने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है दूध से। बहन कर्णावती से कहना, हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना, मेवाड़ की इज्जत हमारी इज्जत है, जाओ। हुमायूं says, really Hindu beg, she has sent me a magical thing. She has sent me Rakhi and has made me her brother. Now Humayun says to the messenger, go and tell to my sister Karnavati, although we are not born from same mother, but I will be more than a real brother to her. Go and tell to your queen, the honor of Mewar is equal to our honor. दूत का प्रस्थान. The messenger leaves. तातर खान, आपके अब्बाजान के जानी दुश्मन की औरत ने. तातर खान says, she is your father's greatest enemy's wife. हिंदू बेग, उसी औरत ने जिसके पति ने कसम खाई थी कि मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़े बगैर चित्तौड़ में कदम ना रखूँगा. हिंदू बेग से, she is the woman of the man who had said that he will throw us away from India. हुमायूं, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते.
छोटे छोटे दो धागे दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ देती है। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुरी रानी ने मुझे अपना भाई बनाया है और बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मेरी मदद चाहिए है। हुमायूं says, I'm sad to say that you don't understand the meaning of Rakhi. This small thread even ties the enemy in the chains of love. It is my good luck that the brave queen of Mewar made me her brother, and I need Bahadur Shah's help to protect Mewar. तातर खान, तो क्या जहाँपना ने उनकी प्रार्थना मंजूर कर ली है? तातर खान asked, So my lord, did you accept the prayers of the queen? हुमायूं, वह प्रार्थना नहीं, हुक्म है। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है? यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। हिंदुस्तान की इतिहास गवाह है कि राखी के धागों ने हजारों कुर्बानियाँ कराई हैं। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्मों रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं। हम हर कीमत पर उनकी हिफाजत करेंगे। हुमायूं says, That was not a prayer, but it was an order. After sending the Rakhi, how can someone even think about it? It's in the history of Hindustan that people have sacrificed their life for the sake of Rakhi. I would like to tell the entire world that the culture and beliefs of the Hindus are accepted and loved by us. We would protect them in any condition. तातर खान, एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू को पहल? तातर खान said, See how a Muslim thinks about a Hindu. हुमायूं, अब सोचने का वक्त नहीं। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों और ताकतों से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत करूँगा। तातर खां हिंदू बेग, जल्दी फौज तैयार करो, हमें अभी कुछ करना है। हुमायूं says, There is no time to think. The relationship of a sister is beyond any happiness, property and power in the world. I will keep the honor of this Rakhi. Tatar Khan and Hindu Beg, keep my army ready. Now we have to do something. Then the emperor ties the Rakhi in his hand. पहला दृश्य, स्थान चित्तौड़ का भीतरी भाग। महारानी कर्मवती, जवाहर बाई और बाघ सिंह बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। हाँ बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है? राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का तोपखाना आग उगल रहा है। उसका मुकाबला तलवारों से तो हो नहीं सकता। हमें मरना है। हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मार कर मरेंगे। पर दुख है तो यही कि मरकर भी मेवाड़ की मान की रक्षा न कर पाएंगे। बड़ा कठिन प्रसंग है। इस समय मेरे स्वामी नहीं है, नहीं तो उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किस में साहस था। उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का साहस किसे हो सकता था? बाघ सिंह जी,
हमने आपस की शत्रुता की आग में अपने ही हाथों अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया। अब पश्चाताप करने से क्या लाभ देवी? अब तो हमें मार्ग बताइए। मुझे एक उपाय सूझा है। क्या? मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। हुमायूं को? क्या एक मुसलमान को भाई बनाओगी? चौंकते क्यों हो जवाहर? मुसलमान भी इंसान हैं, उनकी भी बहनें होती हैं। सोचो तो बहन, क्या वे मनुष्य नहीं हैं? क्या उनके हृदय नहीं हैं? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में ना जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इसीलिए हमें उनसे घृणा करनी चाहिए? यह इतना आसान नहीं। क्या हुमायूं पुराना वैर भूल सकेंगे? सीकरी के युद्ध के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिट सकेंगे? हमारी राखी वह शीतल दवा है जो सारे घाव भर देगी। यह वह वरदान है जो सारे वैर भावों को जलाकर भस्म कर देती है। राखी पाने के बाद कोई वैर विरोध याद रख सकता है भला? पर वे हमारे शत्रु हैं। ऐसा न कहो। हमारी तरह अब भारत उनकी भी जन्मभूमि हो चुकी है। वे हमें बहन समझें और हम उन्हें भाई, यही उचित है। लीजिए यह राखी और यह पत्र आज ही दूत के साथ बादशाह हुमायूं के पास भेजिए। बिहार में गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा, अपने खास तंबू में हुमायूं, उसका सेनापति हिंदू बेग और तातार खां बैठे हैं। स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह जी की महारानी कर्मवती ने आपको यह भेंट भेजी है। हाँ, देखूं तो इसमें क्या लिखा है। हुमायूं पत्र पढ़ते हुए विचार मग्न हो जाते हैं। क्या सपना देखने लगे जहां पना? महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है? सचमुच हिंदू बेग, उन्होंने जादू का पिटारा ही भेजा है। मेरे सूने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे अपना भाई बनाया है और बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मेरी मदद चाहिए है। तो क्या जहां पनाह ने उनकी प्रार्थना मंजूर कर ली है? वह प्रार्थना नहीं, हुक्म है। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है? यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि राखी के धागों ने हजारों कुर्बानियां कराई हैं। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूं कि हिंदुओं के रस्म रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं। हम हर कीमत पर उनकी हिफाजत करेंगे। एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू को पहल, अब सोचने का वक्त नहीं। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों और ताकतों से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूंगा। तातार खां, हिंदू बेग, जल्दी फौज तैयार करो, हमें अभी कूच करना है। राखी हाथ में बांधते हैं, सब जाते हैं। इस कहानी के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी। दिस स्टोरी इज रिटन बाय हरिकृष्ण प्रेमी। सो हियर वी हैव इंट्रोडक्शन अबाउट राइटर। लेखक परिचय। हरिकृष्ण प्रेमी का जन्म 1908 में हुआ था। इनके नाटकों में प्रेम की विविध प्रकार से अभिव्यक्ति की गई है। ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे और इनके नाटकों के विषय भारतीय इतिहास के मध्यकालीन युग से लिए गए हैं। 1930 में छपी स्वर्ण विहार इनकी पहली प्रकाशित रचना है। इनकी प्रमुख कृतियों में रक्षाबंधन, शिवा साधना, आहुति, स्वप्नभंग, विशापन, छाया और ममता
को कई बार मंचित किया गया है। सन 1979 में इनकी मृत्यु हो गई। So children, now you are clear with our chapter Rakhi Ka Mulya. I will upload the classwork in our school portal and we will meet in the next session. Till that, take care.